अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं मेरे बेटा? ठीक है बेटा। अभी हम इंग्लिश करते हैं। वर्ड्स मीनिंग्स। वर्ड है क्राउड, खुशी से चिल्लाना, शाउट विद डिलाइट, स्प्रिंकल्ड, बिखरे हुए, छिड़के हुए, रैंडमली स्प्रेड आउट, ओके, विक, चिराग की बत्ती, a sting in oil, courtesy, शाइस्तगी, a polite act, inkling, ख्वाहिश, desire, row, तंग गली, a narrow street, circumstance, वाक्या, event, incident, stag, बारासिंगा, मेल्डिया, flounders, बेकाबू होना, मेक अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स, मार्की, बड़ा खैमा, लार्ज टेंट, कैरेमल, च्यूई कैंडी, कॉर्डियल, खुश हल्की पर मबनी, कॉर्डियल खुश हल्की पर मबनी, वार्म, सिंसियर, ग्लो, बहुत ज़्यादा, इन ग्रेट नंबर्स, डिग्निफाइड, बाइज्जत पूर्वकार, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, डिंजे, गंदी, तंग या और तारीख, ठीक है जी, डार्क एंड ग्लोमी, ओडियस, काबिल नफरत, हेटफुल। आगे हैं बेटा वर्ड्स और सेंटेंसेस। वर्ड हैं इन द स्मॉल आवर्स, शी वर्क्स इनटू द स्मॉल आवर्स, she works into the small hours. Trifling with, he said, trifling with the burnt bread in his plate. Circumstances, these are special circumstances. Ambition, this is my life's ambition, without doubt. A nutcase, without a doubt. Root, money is the root of all evil. Cage, the monkey is in the cage. Wistfully, he looked wistfully on the velvet carpet. Mourning, she was in mourning for her mother. Mourning, ये morning नहीं mourning है. Think me ungrateful. In this event, she think me ungrateful. Solemnly, he solemnly declared that it was true. Fittingly, she lived fittingly enough. Okay ji. Similes, a simile is a comparison. We use similes to make what we say more vivid or our meaning clearer. कहता है complete the given similes. As white as snow, इतना वाइट जितनी की एक स्नो बर्फ होती है, एज क्लियर एज क्रिस्टल, एज सॉफ्ट एज ए फीदर, एज डार्क एज नाइट, एज क्विक एज लाइटनिंग, एज स्मूथ एज सिल्क, एज स्ट्रेट एज एन एरो। ओके, नेक्स्ट है रीड द लेसन ब्लैक ब्यूटी फ्रॉम योर बुक, राइट द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इन टू योर ओन वर्ड्स। जी, the theme of Black Beauty is that faith and trust are much better than animal cruelty. Anna Sewell released this and wrote a book from the perspective of a horse to convey the message to other readers. This was written during a time when horses were still in common use. Okay, write down the summary of the poem. Moonwind by Ted Hughes is full of poet's fantasy imaginary. He imagines that if there were earth like life on moon, everything would be blown by the strong wind blowing there. He says that there isn't any wind on the moon, but
then also things get blown away, and also there's no wind, then also the candle shivers out. Okay बेटा, next है what do you think is meant by each of the following proverbs? All works and no play makes Jack a dull boy. So all work and no play makes Jack a dull boy. कि सारा टाइम खेलते रहो, काम करते रहो और खेलना नहीं है, तो ये जैक को जो है ना एक डल बच्चा बनाते हैं. We should work and play in proper measures or we shall become dull. Okay. Honesty is the policy. It is the best to be honest in one's affairs. Don't make a mountain out of molehill. One should not treat unimportant things as if they are important. Half a loaf is better than on no bread. Something is better than nothing. Don't put the cart before the horse. This should be done in right order. Okay. So आगे कहता है कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको आपने जो है ना अंडरलाइन जो जगह किए हुए हैं वर्ड्स उनकी जगह पे पुट करना है. सो ये 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास हैं तो 5, लेकिन ये उन्होंने 7 दिए हुए हैं. कोई भी यहाँ से आपने पिक करके तो ये जो अंडरलाइन है ना वर्ड्स इनकी जगह पे लिखना है. तो ये बेटा मैंने कुछ लिखे हुए हैं तो आपने इनको देख लेना है. ठीक है, ये कंसेप्चुअल है ज़रा, तो ये मैं आपको समझाऊंगा. जी ग्रामर में बेटा आता है डिस्क्राइब ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन योर ओन वर्ड्स विदिन देयर एग्जाम्पल्स. नो लूज शीट्स. कहता लूज शीट नहीं है, यहीं पे आपने बताना है. अंडरलाइन द प्रोनाउंस and say whether they are used as subject or object and whether they are singular or plural. कहता है यहाँ पे 2 चीज़ें आपने देखनी है. एक तो देखना है वो जो है हमारे प्रोनाउंस वो सब्जेक्ट में आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट में आते हैं. ये 2 चीज़ें आपने देखनी है. फिर आगे देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है जी. यहाँ पे देखें ये दे हमारा है तो बेसिकली हमारा सब्जेक्ट और ये है प्लूरल. दे ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है तो ये प्लूरल और है भी सब्जेक्ट. यहाँ पे अस आया है, अस जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है और है ये प्लूरल. ठीक है. अब शी जो है ये पहले यहाँ पे आया है तो ये तो है सिंगुलर और है भी ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है. ये पहले जो आएंगे बेटा ही शी इट या सिंगुलर नेम नहीं, जो ही शी इट आई वी यू दे ये सारे आएंगे यहाँ पे फर्स्ट, तो ये हमारे बनेंगे सब्जेक्ट. अगर ये सारे इधर आ जाए लास्ट पे तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है और है भी सिंगुलर. यहाँ पे मी है, मी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और है भी सिंगुलर. ओके जी. डू यू नो हिम ये सिंगुलर है तो ये हमारा है यू हमारा पहले आता है, 2 है. यू हमारा सब्जेक्ट है और है भी सिंगुलर और हिम जो है हमारा सिंगुलर है लेकिन है ऑब्जेक्ट. आई वॉन्डर वेयर शी पुट द बुक्स. जी ये 2 जो हैं बेटा ये 2 हैं, ये दोनों ही हमारे जो है ना सब्जेक्ट हैं आई और शी, और ये हैं भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर हैं और हैं भी दोनों सब्जेक्ट. ओके जी. अब आगे कहता है ऐड सुफिक्सेस टू द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. OUS या फिर LY ये दोनों हमने पुट करने हैं. सुफिक्सेस बेटा वो होते हैं जो हम एक वर्ड के लास्ट पे कुछ ऐड करके लिखते हैं. मैं आपको आगे बना के देता हूँ कैसे लिखते हैं. जी बेटा ये है नेसेसरी, तो LY हमने यहाँ पे Y को काट के I लगाया, नेसेसरी LY लगाया तो नेसेसरीली. फिर है नॉटीली, एंग्रीली, cheerily, temporarily, ordinarily, noisily, तो ये ordinary आ गया. फिर से luxurious, furious, mysterious, industrious, melodious, glory, glorious, injurious,
मिस्ट्री, मिस्ट्रियस। ओके जी, ये बेटा आपने करने हैं। मतलब ये लास्ट में हमने यहाँ पे सारे OUS ऐड किए हैं इनके, तो वो वर्ड्स हमारे सुफिक्सेस बन गए। यहाँ पे हमने जस्ट ly पुट किया है और ये हमारे सुफिक्सेस बन गए। ओके, आगे है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर, नेम ऑल द टेंसेस। बेटा टेंसेस तो बेसिकली हमारे 3 हैं, जैसे कि हमारा गुजरा हुआ ज़माना, मौजूदा और आने वाला, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इनकी आगे 4-4 किस्में होती हैं। तो मैं देखें क्या हैं जी बेटा, इनकी आगे 4-4 जो है ना एग्जाम हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 4 जो है ना इनकी टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यही प्रेजेंट की भी होती हैं, यही पास्ट की भी होती हैं और यही फ्यूचर की होती हैं। तो ये आपने कोशिश करनी है खुद से लिखने की। राइट प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस कंप्लीट विद 5 एग्जाम्पल ऑन ईच वन। ओके जी, आपने प्रेजेंट और पास्ट जो है ना टेंस ये कंप्लीट करना है, 5-5 एग्जाम्पल आपने देनी है। तो ये आपने खुद से ट्राई करना है। अगर हो गया, ना हुआ तो आपने मुझे टेक्स्ट कर लेना है। आगे है बेटा क्रिएटिव राइटिंग। राइट एनी 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने कुछ लिखनी है जहाँ से भी आपसे हो सके, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो कम, केम, कम, तो रन, रैन, रन, इस तरह की जो है ना ये फॉर्म्स आपने 50 बनानी है। ओके, आगे है राइट ए डिटेल्ड एसे ऑन ए रेनी डे। रेनी डे के ऊपर आपने जो है ना ऐसे लिखना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ जी बेटा। ये आपका जो है ना ऐसे है ऑन रेनी डे, ठीक है। ये आपने सारा यहाँ से करना है, आगे भी पेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये आगे है यहाँ तक, देम तक, इवेंचुअली बेनिफिट देम। ओके, ये बेटा यहाँ तक अपने सही तरह से याद करना है, लिखना है। आगे बेटा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर रेमिशन ऑफ फाइन। ठीक है जी, आपने फाइन के लिए लिखनी है, रेमिट हो जाए तो ये आपने ये सारी एप्लीकेशन लिखनी है। आगे भी है पेज, वो भी आपको दिखाता हूँ जी, ये देख लें। ठीक है जी, ये सारी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, बार बार याद करनी है और बार बार लिखनी है। आगे है स्टोरी आपने लिखनी है, ट्रुथ इज बेस्ट। ओके जी, सच्चाई ही बेहतरीन है। ये सारी मैंने आपके लिए लिखी है, तो ये आपने सही तरह से याद करनी है। ये वही कहानी है जो एक लकड़हारा दरिया के किनारे लकड़ियाँ काट रहा होता है, तो उसका कुल्हाड़ा दरिया में गिर जाता है और एक फरिश्ता नमूदार होता है और वो कहता है कि ये वाला गोल्डन, फिर कहता है ये सिल्वर, वो कहता है नहीं नहीं ये दोनों मेरे नहीं है। ठीक है जी, ये वो वाली कहानी है जी। आगे है ये बेटा, ये यहाँ तक आती है, आगे भी पेज है इसका। ठीक है, तो ये सही तरह से अच्छे तरीके से आपने याद करनी है जी बेटा। आगे है राइट लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू स्पेंड वेकेशंस। कि अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है जिस पे आप उसको जो है इनवाइट करेंगे कि आगे आपके पास गर्मियों की छुट्टियां गुजारे, तो ये। और आगे है राइट पैराग्राफ अबाउट अ विजिट टू अ जू। ठीक है जी, जू में आपने विजिट किया तो वो भी आपने पैराग्राफ, ये दोनों मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये ज़रा देखें गौर से। हाँ जी बेटा, ये आपका लेटर है, लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू स्पेंड वेकेशंस। ओके, ये सारा आपने सही तरीके से याद करना है। ओके, और याद करके बार बार लिखना है। ये बेटा आगे है ए विजिट टू अ जू। ठीक है, जू की आपने सैर की, उस हवाले से आपने एक ऐसे लिखना है। तो ये देखें ज़रा, लास्ट संडे माई फ्रेंड केम टू माई होम, वी डिसाइडेड टू विजिट टू जू, वी बॉट द टिकट्स एंड एंटर द गेट, जू इज। ठीक है जी, इन डेट। ये सारा आपने जो है ना सही तरह से अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, नेक्स्ट है, इस थोड़ा सा आगे भी है, ये थोड़ा सा है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और कंप्लीट इसको करना है, बार बार याद भी करना है और लिखना भी है। सारा काम आपने अच्छे तरीके से याद करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।